Hello kids, welcome back. Welcome back to your computer classes. Now kids, we have completed our chapter 5 in the last class, that is learning how to type. That we have done in our last class. Now today we will go through generations of computer. Though I have explained you this topic several times, but I feel that some of you, till now, some of you get confused between the things. How many generations of computer and languages used. So the coming 1-2 classes, I'll take on generations of computer and the languages. Because मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि generations of computer में क्या क्या differences आए and what are the differences are there in लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर. सो टुडे आज की क्लास और आने वाली कुछ क्लास वी विल कीप ऑन जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. आज की क्लास और आने वाली कुछ क्लास we will do on generations of computer. So let us see. Okay. Now, computer. So first of all, let us start our lesson with the understanding computer. So a computer is a machine that manipulates data according to a set of instructions. A computer is a programmable machine that receive input, store and provide output in a useful format. They can be constructed out of almost anything. Okay, so what is computer? Computer is a programmable machine. Programmable machine means what? That computers work with the help of program. They work with the help of program. I have told you this when we were reading about कंप्यूटर लैंग्वेजेस. तो व्हाट इज कंप्यूटर? आपने बचपन में एक जनरल डेफिनेशन देखी थी कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स विद द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट फॉर्मेट. तो यहाँ पे भी वही है, कंप्यूटर क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन पे ही वर्क करता है. Okay, now चलो let us move ahead. Now father of computer. So now जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं, so without talking about father of computer, that is Mr. Charles Babbage. Mr. Charles Babbage के बारे में बात किए बिना we can't move ahead. So Mr. Charles Babbage, a British mathematics professor, is regarded as the father of computer. He was born in England in 1792 as the son of a rich banker from Devon. He was inspired by Napier's logarithm table and Napier's law. तो Napier's के बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था. ओके. तो Charles Babbage, he was inspired by Napier's logarithm and Napier's law. He began to design a difference engine. इन्होंने अपना काम कैसे शुरू किया? इन्होंने अपना काम शुरू किया डिफरेंस इंजन बना के, ठीक है, इन 1821, which was very large and complicated machine. So now when he invented the difference engine, so that difference engine was very large and complicated machine intended for doing logarithm calculation automatically. But in that difference engine also, it was in that difference engine logarithm and calculation was done automatically. So who is known as father of computer? Charles Babbage. Now, so this is our topic. Our topic is generations of computer. Now this is our topic. So there are 5 generations of computer. First generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation.
So these are 5 generations of computer: first, second, third, fourth and fifth. These 5 are generations of computer. अब सबके अपने अपने टाइम फ्रेज थे. टाइम फ्रेज मतलब किस किस टाइम में. ओके, नाउ सबके अपने टाइम फेज थे मीन्स जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया 1946 से लेके 1955 तक, 1946 टू 1955 तक लेके क्या आया, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. देन आफ्टर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, second generations of computer 1956 to 1965. Third is 1966 to 1975, then 1976 to 1985, and then 1986 and onward. Okay. So this is how generations of computer came into being. Now we will start with first generations of computer. So we are going to start with first generation of computer. Now first generation of computer, they uses vacuum tube. Now I have told you during the explanation of our chapter also that first generations of computer, they were very big. Computers used to be very, बहुत बड़े बड़े computers होते थे. इतने बड़े साइज के कंप्यूटर होते थे कि उनके लिए एक हॉल या एक रूम की जरूरत आपको पड़ती थी. Okay. So the first generations of computer, they uses vacuum tube. Now first generation's computer uses vacuum tube, magnetic tape, drives and magnetic core memories. ENIAC, 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 Electronic Numeric Integrator and Calculator, was the first electronic digital computer. It uses about 18,000 vacuum tube. ठीक है? So now it uses around 18,000 vacuum tubes. Its size was too much large. This was very hard to read and write program by every person. So I have told you that यहाँ पे क्या होता था, in the first generations of computer, reading program was a cumbersome task. बहुत मुश्किल काम होता था read करना प्रोग्राम को. The first generation of computer produces too much heat because the size was very big, because they were using vacuum tubes, things like that. So that's why what happened, it was very it produced lots of heat, too much heat, and AC, air condition was required in that room. Cooling system was required in that room. See, this is the picture of first generations of computers. See how big they are. This is the picture of first generations of computer. आप खुद देखो कितने बड़े ये पिक्चर है, कितना बड़ा सा कंप्यूटर है. देखो ये पूरा रूम कंप्यूटर की तरह पूरा भरा हुआ, कितने सारे वायर्स है, और यहाँ पे वन मैन इज ट्राइंग टू वर्किंग ऑन द सिस्टम. तो अब आज का हमारा कंप्यूटर देखो, आज का हमारा कंप्यूटर तो आई गेस इतने बड़े बॉक्स के बराबर भी नहीं, इससे भी बहुत छोटा होता है ना. तो सी कितना बड़ा वो कंप्यूटर उस टाइम वो यूज करते थे. गॉट इट? पूरा एक रूम भर के इनके कंप्यूटर होते थे. नेक्स्ट इज material use. Next we are going to read about what are the material that were being used in first generations of computer. So first is vacuum tube. Now next one is magnetic drum. After vacuum tube, next one is magnetic drum. Other one is 4000 bits. 4000 bits is what? This is memory is given. Memory है उसकी. Hardwire programming in the कंप्यूटर. हार्डवायर प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर, ये मैम ने आपको अभी दिखाया.
So we were discussing that material that were used in first generations of computers. So the material that were used, they are vacuum tube, magnetic drum, 4000 bits of memory, and hardwire programs in computer. Okay. Acha. Now first generation language. So which is the first generation language? So in the first generation computers, they represent, they do not understand anything. Now computer nowadays also, they don't understand anything. They only understand 0 and 1. So whenever you have to code, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये 1001 1001, इस तरह के फॉर्मेट में हमें क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ता था. तो represent the very early primitive computer language that consisted entirely of ones and zeros. मतलब खाली पूरा प्रोग्राम किसे 10001 पे ही लिखा जाता था. The actual language that the computer understands is machine language. So the actual language that computer understands is machine language. This language is also known as binary language. Now this language of computer is also known as binary language. Okay, तो देखो प्रॉब्लम क्या थी बाइनरी लैंग्वेज के साथ कि 01011 में पूरा कोडिंग करना बहुत मुश्किल था. 010101 में पूरी कोडिंग कर देना, दिस वाज रियली डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर. क्योंकि अब देखो हम सारे वर्ड्स की कोडिंग नहीं याद कर सकते. इट इज नॉट practically possible for the human being to memorize each and every word in terms of code. ठीक है, तो we cannot memorize each and every code. Okay, now let us move ahead. Advantages. So there were few advantages of using the first generation of languages. अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि अभी जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब तक तो हम क्या करते थे, काउंट करते थे, फिंगर काउंटिंग करते थे, या बड़े क्वेश्चंस को हमें लिख के करना पड़ता था, वो टाइम टेकिंग था. अब कंप्यूटर आ जाने के बाद काम थोड़ा तो आसान हुआ ही था. द advantages of the earliest computers are, it is that they could perform thousands of calculation each second. They could perform the thousands of calculation each second, making it possible decode messages in a useful time period, a few hours. ठीक है. The father of this computer had originally planned these machines to try and prove mathematical conjectures, but this type of application couldn't be considered until after the war. है. The second point we don't need to go through, but the first point is that it is that they could perform thousands of calculations each second, making it possible to decode the message in a useful time of a few hours. So what could they do? They could perform thousands of calculation in each second. Although first generation of computer अभी इतने advanced नहीं हुए थे, but still we can do that. Disadvantages. Now, the first generation of computers, they were very expensive. तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के लिए था वो ये था कि ये कंप्यूटर्स क्या थे, ये कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे. दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ वॉल्व्स, वैक्यूम ट्यूब, मेकिंग देम अनरिलायबल. तो इनमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था. थाउजेंड्स ऑफ वॉल्व्स मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब इनमें यूज होते थे. और वैक्यूम ट्यूब यूज होना इनको क्या बनाता था, अनरिलायबल बनाता था. The major limitation for early computer was that memory was practically non-existent. Only punched, tape, delay line memory and mercury memory was available. तो देखो एक प्रॉब्लम और जो इन कंप्यूटर्स के साथ थी वो ये थी कि इन कंप्यूटर्स में क्या एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी जो थी, इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा नहीं थी. अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि क्या होता था, इनकी मेमोरी कितनी होती थी, इनकी मेमोरी होती थी इनकी मेमोरी कुछ होती थी
4000 बिट्स की, जो कि कम है, तो इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। ओके, मूविंग अहेड। Okay, so after first generations of computer, here we are on the second generations of computer. अब हमें क्या पढ़ना है? We have to read about second generations of computer. Second generations computer uses a new electronic device called transistors in place of vacuum tube. So now in place of vacuum tube, second generations computer, they were using a new electronic device called transistor. पहले क्या था? vacuum tube. बट अब इन्होंने क्या यूज करना शुरू कर दिया? अब इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया ट्रांजिस्टर। अब इन्होंने ट्रांजिस्टर यूज करना शुरू कर दिया। Storage capacity of computer also increased during this generation. Second generation computers also started showing the characteristic of modern day computer with utilities such as printer, disk storage and operating system. Many financial information was processed using these computers. तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे। स्टोरेज कैपेसिटी क्या हुई? स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या की गई? बढ़ा दी गई। स्टोरेज कैपेसिटी भी इन कंप्यूटर्स की क्या की गई थी? बढ़ा दी गई थी। और अब क्या था? देवर second generation computer, they also start showing the characteristic of modern day computer with utilities such as printer, disk storage, operating systems, etc. Many financial information was processed during these computer. Many financial storage was processed during these कंप्यूटर। ठीक है, मेनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब वो कंप्यूटर था तो उसमें जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थे उनको क्या किया जाता था? इन कंप्यूटर्स पे प्रोसेस किया जाता था। सी दिस इज व्हाट? दिस इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थे? कितने बड़े थे? पूरे रूम में रहते थे, है ना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या थे? पूरे बहुत बड़े थे। कहाँ रहते थे? एक पूरे बड़े से रूम में रहते थे। लेकिन अब क्या आ गया हमारे पास? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की क्या खासियत थी? ये कॉम्पैक्ट छोटे मतलब अब ये इनकी साइज क्या होने लगी थी? कॉम्पैक्ट होने लगी थी। छोटे साइज में अब ये आने लगे थे। लेकिन स्टिल बेटा अभी भी देखो, अभी भी देखो ये कितने बड़े हैं। यहाँ पे इतना बड़ा सा 1 बॉक्स, इधर 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, इधर शायद ये टाइपराइटर से कीबोर्ड का काम करते थे। तो अभी भी साइज जो थी अभी भी बड़ी थी, लेकिन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंपेरेटिवली कम थी। Next is material used. So what are the material used? Transistor, magnetic cores, 32,000 bits, punch card. These four are the material used. ठीक है, ये सारे क्या हैं? These all are the material used. Transistors, magnetic core, 32,000 bits and punch card. तो यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने क्या यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब। अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में फिर देखो मेमोरी कितनी थी? 4000 बिट्स थी और अब क्या हो गई थी? 32,000 बिट्स। मेमोरी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है ना। ओके, और देखो 32,000 बिट्स, पहले अर्लियर इट वाज 4000, नाउ इट इज 32,000 बिट्स। और स्टोरिंग के लिए अब दे आर यूजिंग पंच कार्ड। बट बेटा इनके साथ भी क्या था ना, इनका भी कुछ क्या था कि इनके साथ भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, फर्स्ट इज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। ओके,
So now the next topic is second generation languages. Represent a step up from the first generation. Now first generation से एक कदम आगे second generation के जो computers है, they allow the use of symbolic name instead of just number. So they allow the use of symbolic name instead of just number. अब मतलब क्या हुआ इसका? इसका व्हाट डज इट मीन? रिप्रेजेंट देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन में तो हम 010101 से कोडिंग करते थे. नाउ सेकंड जनरेशन पे हमने क्या किया? सेकंड जनरेशन में सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए हमने क्या किया? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए अब यहाँ पे सिंबॉलिक लैंग्वेजेस यूज होने लगे. सिंबॉलिक नेम जैसे ऐड के लिए ऐड लिखने लगे इन्होंने, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट, इस तरह करके. तो नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द सिंबॉलिक लैंग्वेज. अब क्या होता था? अब खाली 01010101 से हमारी कोडिंग नहीं होती थी. अब हमने क्या शुरू किया? सिंबॉलिक लैंग्वेज. नाउ कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, वी कन्वर्ट दैट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज. तो वो कंप्यूटर कैसे करता था? विद द हेल्प ऑफ असेंबलर. कंप्यूटर वो किसकी मदद से करता था? विद द हेल्प ऑफ असेंबलर. नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. Smaller in size as compared to the first generations of computer. नाउ पहला एडवांटेज क्या है कि दे वर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कंपेरेटिवली ये क्या थे? ये छोटे होते थे. ओके, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले ये क्या होते थे? ये छोटे होते थे. वन मोर थिंग, दे आर मोर रिलायबल. अब ये क्या थे? अब हम इन पे ज्यादा क्या कर सकते थे? वी कैन रिलाई ऑन इट. लेस हीट जनरेटेड. अब क्या था? कम हीट जनरेट होता था. हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बहुत ज्यादा गर्मी जनरेट होती थी. अब यहाँ पे क्या थे? लेस हीट जनरेटेड. These computers were able to reduce the computational time from millisecond to microsecond. देखो मिलीसेकेंड से माइक्रोसेकेंड में अब क्या था? कंप्यूटेशनल टाइम, किसी चीज को कैलकुलेट करने का टाइम इन्होंने कितना कम कर दिया? मिलीसेकेंड से माइक्रोसेकेंड तक आ गए. लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर. नेक्स्ट इज क्या हुआ? लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर. हार्डवेयर फेलियर क्या हो गया? ना के बराबर, बहुत कम होने लगा. लेस हार्डवेयर फेलियर. नाउ नेक्स्ट इज बेटर पोर्टेबिलिटी. अच्छा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या थे ना? वो इतने बड़े थे कि वो एक पूरे एंटायर वन रूम में फिट होते थे. तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? अब उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बनाया. तो अब उस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या होता था कि दे आर पोर्टेबल. बेटर पोर्टेबिलिटी मतलब वी कैन एटलीस्ट हम वन रूम टू अनदर रूम ले जा सकते थे. अभी भी ऐसा नहीं था. सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी अभी इतने हम एडवांस नहीं हुए थे कि हम उनको साथ लेके ट्रैवल कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाइडर कमर्शियल यूज. अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का क्या हुआ? अब इनका वाइडर क्या हो गया? कमर्शियल यूज वाइडर हो गया. ओके, नाउ देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. अब डिसएडवांटेजेस क्या थे? एयर कंडीशनिंग इज स्टिल रिक्वायर्ड. अभी भी एयर कंडीशनिंग क्या थी? रिक्वायर्ड थी. एयर कंडीशनिंग अभी भी रिक्वायर्ड थी.
Next is frequent maintenance required. Frequent maintenance required. Manual assembly of individual component into functioning unit was required. अच्छा, next is commercial production was difficult. Next is कमर्शियल प्रोडक्शन क्या था? कमर्शियल प्रोडक्शन अभी भी क्या था? डिफिकल्ट था. कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली. कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब अभी भी इतना ये हैंडी नहीं था, अभी भी ये क्या थे? डिफिकल्ट था इसको क्या कर पाना, इसको प्रोड्यूस कर पाना और इसकी कमर्शियल यूज मतलब इसको बिजनेस क्लासेस को बेचना अभी भी डिफिकल्ट था. तो फर्स्ट इज अभी भी क्या था? डिसएडवांटेजेस इज व्हाट? एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड, frequent maintenance is required. Next is manual assembly of individual component into functioning was required. Commercial production was difficult and costly. Commercial production क्या था? Difficult और costly था. Okay, moving ahead. चलो अब आगे चलें. Now the next is third generations of computer. अब क्या हुआ? कंप्यूटर और एडवांस हो गया. अब यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांजिस्टर्स भी रिप्लेस्ड हो गए. ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके क्या आ गया? ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट. ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके आया इंटीग्रेटेड सर्किट, which is a combination of number of transistors and other electronic components fused together on single crystal. This generation machine uses magnetic tape and magnetic disk as a secondary storage device. तो अब क्या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ? अब इन्होंने ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब को पूरी तरह से हटा के अब ये क्या यूज करने लगे? इंटीग्रेटेड सर्किट. दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट. What is integrated circuit? It is a combination of number of transistors and other electronic components. ठीक है. अब होता क्या है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट इज व्हाट? एक छोटा चिप जिसके ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं. दिस जनरेशन मशीन यूजेस मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड स्टोरेज डिवाइस. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाने लगा. किस तरह से? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरह. मतलब अब यहाँ पे स्टोरेज की दिक्कत नहीं होती थी. अब स्टोरेज के लिए हम क्या करने लगे हैं? स्टोरेज के लिए अब हम क्या करने लगे बेटा? स्टोरेज के लिए अब यहाँ पे हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करने लगे थे. ओके, मूविंग अहेड. सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ अवर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अब ये कंप्यूटर देखो कुछ हद तक उस कंप्यूटर की तरह दिख रहा है जैसा हम अभी के टाइम में यूज करते हैं. अब ये कंप्यूटर कुछ वैसा दिख रहा है ना. यहाँ पे आप इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि जैसा हमारा अभी का लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, दिस कंप्यूटर इज एग्जैक्टली द सेम. वैसे ही यहाँ पे मॉनिटर एंड दिस इज सीपीयू, दिस इज कीबोर्ड, माउस, वायर्स, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम जैसा कि हम आज के कंप्यूटर्स में देखते हैं. तो बेटा इससे हमें क्या पता चलता है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आते आते क्या हो गया था? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आते आते थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आते आते व्हाट हैपेंड कि थिंग्स बिकम इजी. अब देखो कंप्यूटर क्या होने लगे? छोटी जगह पे भी फिट होने लगे. So kids, this is it for today. We will meet in our next class. आज हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक पढ़ा. We will carry on
in our next class.